علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SVFN نیوز اور میں ہوں فریحہ امتیاز۔ بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے، سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل میں ان کیمرہ سماعت پر حکم امتناع ختم کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے۔ دوران سماعت اتھارٹی جنرل کے 14 دسمبر کے بعد کارروائی از سر نو کرنے کی یقین دہانی۔ عدالت نے اتھارٹی جنرل کی یقین دہانی دکھانے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری طرف 9 مئی مقدمات میں بانی چیئرمین PTI کے جسمانی ریمانڈ کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز 12 مقدمات کی تفتیش آفیسرز نے بانی PTI سے جیل میں تفتیش کی۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر PTI اور ANP کے کارکنوں میں جھگڑا۔ ANP کے کارکنوں نے PTI رہنما فضل محمد خان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ توہین عدالت کیس کی سماعت ختم ہونے کے بعد جیسے ہی فضل محمد خان کورٹ روم سے باہر نکلے، ANP کارکنوں نے لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ صدر مملکت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی نقوی نے کل استعفیٰ دے دیا۔ صدر عارف علوی نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت استعفیٰ منظور کیا تو مظاہر نقوی اب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے۔ مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی چل رہی تھی۔ قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کے باوجود مظاہر علی نقوی ریٹائرڈ جج کے مراعات نہیں لیں گے۔ آڈیو سکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد مظاہر علی نقوی کے خلاف کرپشن کی مختلف درخواستوں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری۔ نون لیگ نے راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژن میں امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ احسن اقبال NA 76 ناروال سے الیکشن لڑیں گے۔ خواجہ آصف NA 71 سیالکوٹ سے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد سے ضمیر حسین ضمیر۔ جی آگاہ کیجیے گا ضمیر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی جو ہے سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے اور جو طور کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ خوب کی جا رہی ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ٹکٹ اناؤنس کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے نام جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں جہاں ٹکٹ اناؤنس کر رہی ہیں، اسی طرح جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو ہے وہ بھی عام انتخابات کے لیے جو ہے لاہور کے علاوہ پنجاب کے امیدواروں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے راولپنڈی، فیصل آباد، ساہیوال، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدواروں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹرل الیکشن سیل مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کی جانب سے جو ہے پارٹی کے قومی اور صوبائی حلقوں کے ٹکٹ ہولڈرز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹکٹ جاری ہونے والے امیدواروں کی فہرست میں دانیال عزیز کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہے، جبکہ لاہور کے حلقوں کے علاوہ شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور قصور کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے حلقہ NA 46 سے جو انجم عقیل خان اور NA 48 سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو جو ہے مسلم لیگ نون کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے اور اسی طرح راولپنڈی کے قومی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں حلقہ NA 51 سے راجہ اسامہ سرور، NA 52 سے راجہ محمد جوید اخلاص، NA 53 سے راجہ قمر الاسلام اور NA 55 سے ملک ابرار احمد اور NA 56 سے محمد حنیف عباسی، جبکہ NA 57 جو ہے دانیال چودھری اٹا کے حلقہ NA 49 سے شیخ آفتاب احمد، NA 50 ملک سہیل خان چکوال کے حلقہ NA 58 سے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال، تلنگانہ کے حلقہ NA 59 سے سردار غلام عباس کا جو نام شامل کیا گیا ہے، ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں اور اسی طرح راولپنڈی ڈویژن کے صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں، پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP1 سے جہانگیر خان زادہ، PP2 سے افتخار احمد خان، PP3 حلقہ سے حمید اختر، PP4 سے شیر علی خان، PP5 سے ملک اعتبار خان اور راولپنڈی کے حلقہ PP6 سے ملک بلال یاسین اور PP7 سے راجہ تذیر احمد جو ہے، PP8 سے افتخار احمد اور PP9 سے شوکت راجہ، PP10 سے چودھری نعیم اعجاز اور PP11 سے عمران لیاز چودھری اور PP13 سے ملک عمر فروخ کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اسی طرح PP14 سے ملک افتخار، PP15 سے ملک منصور افسر، PP16 سے ضیاء اللہ شاہ، PP17 سے راجہ عبدالحمید،
PP 18 से सजाद खान, PP 19 से हाजी परवेज खान, PP 20 से सुल्तान हैदर अली खान और PP 21 से तनवीर असलम मलिक और तलक खान की हल्का PP 23 से शहरयार मलिक, झेलम की हल्का PP 25 से चौधरी नदीम खादिम और PP 26 से नासिर महमूद मुस्लिम लीग नून के जो है वो उम्मीदवार होंगे। और इसी तरह गुजरावाला डिवीजन की अगर हम बात कर लें तो गुजरावाला डिवीजन की असम्बली के उम्मीदवार गुजरात के हल्के MA 62 से चौधरी आबिद रजा, MA 63 से नवाबजादा मुजफ्फर अली गुल और MA 65 से चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्धू और वजीराबाद के हल्का MA 66 से निसार अहमद चीमा, अफजाबाद के हल्का MA 67 से सायरा अख्तर तारक, मंजीत भावदीन के हल्का MA 68 से मुशाहिद रजा, MA 69 नासिर इकबाल गोसाल सियालकोट के हल्का MA 70 से चौधरी अरमगान सुबहानी और MA 71 से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है वो मैदान में उतरेंगे। और इसी तरह अगर हम सियालकोट की बात कर लें तो सियालकोट के हल्का MA 72 से अली जाहिद, MA 73 से मुशीन इफ्तिखार, MA 74 से राना शमीम अहमद खान, नारोवाल के हल्के MA 75 से चौधरी अनवारुल अख्तर, MA 76 से एहसन इकबाल, गुजरांवाला के हल्के MA 77 से चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क, MA 78 से खुदम तस्वीर खान, MA 79 से जुल्फकार अली भंडार, MA 80 से शाहिद उस्मान और MA 81। बहुत शुक्रिया ज़मीर आपका। आप हमें नई जो ताज़ा तरीन आपके पास अपडेट है उससे आगाह कर रहे थे। तो जी नाज़रीन, आगे चलते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नून लीग और IPP में सेट एडजस्टमेंट। नून लीग ने जहांगीर तारीन के मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। NA 149 से अभी तक इसे उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ। नून लीग ने NA 70 सियालकोट में फिरदौस आशिकान के मुकाबले में अरमगान सुबहानी को मैदान में उतारा। लाहौर में अलीम खान की सेट पर सेट एडजस्टमेंट का इम्कान है। PTI और दीगर पार्टियां छोड़कर आने वालों को भी नून लीग ने टिकट दे दिए। चंद रोज पहले नून लीग में शामिल होने वाले सैयद फैसल सालिया हयात को फिर टिकट मिल गया। NA 108 से इलेक्शन लड़ेंगे। PDM दौरे हुकूमत के अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी NA 104 से फैसलाबाद से टिकट के हकदार करार। मुल्तान के हल्का NA 148 से अहमद हुसैन रिटेड टिकट लेने में कामयाब। MQM में भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। कराची से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल 2-2 हलकों में पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अमीनुल हक, रऊफ सदीकी, आसिया इसहाक, जवेद हनीफ को भी टिकट मिल गया। हसान साबिर, सादिक इफ्तिखार और अरशद इकबाल महसूद दोहरा में भी इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मलीर और लियारी में किसी को पतंग ना मिली। MQM सूबाई हलकों के हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज करेंगे। देखते रहिए SVFN न्यूज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाजरीन, टू SVFN न्यूज। डिस्ट्रिक्ट न्यूज से सबसे पहले आपको आगाह करेंगे खानेवाल से। दीगर शहरों की तरह खानेवाल शहर और इसके गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। देहाती इलाके के लोगों ने भी गरम गरम जलेबी, समोसे, पकोड़े खाने के लिए अड्डा हलीम शाह चौक का रुख इख्तियार कर लिया। जी जाम इम्तियाज, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लोगों ने पकौड़े, समोसे और गरम गरम जलेबियों का रुख कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इससे जानते हैं कि वो मौसम का एंजॉय करने के लिए होटल पे आए हैं। इससे जानते हैं कि वो क्या चीज़ पसंद करेंगे। जी भाईजान, मौसम सर्द है, आप गरम गरम जलेबियाँ, पकौड़े, समोसे खाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जी भाईजान, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इतनी शदीद सर्दी बढ़ चुकी है और इस सर्दी को कम करने के लिए ये गर्मा गर्म समोसे हैं। जैसा कि ये यासिर भाई समोसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छे बनाते हैं, लिहाजा खुद भी खाएं और अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाएं। बहुत ही अच्छे समोसे हैं, टेस्टी हैं, ताकि समोसे खाएंगे और सर्दी का तोड़ होगा। समोसे और पकौड़े, जलेबियाँ वैसे तो सारा साल
पसंद की जाती हैं। जब मौसम सर्द हो तो इसको खाने का अपना ही मज़ा है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, आपने हमें खबर से खानेवाल से आगाह किया। अगली खबर शामिल करते हैं। खुशाब के मुख्तलिफ इलाके भी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। खुशाब के इन इलाकों में जारी सर्दी की लहर के असरात के बारे में आगाही हासिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ राजा नूरुल इलाही आतिफ से। जी राजा नूरुल इलाही आतिफ, हमें अपनी अपडेट से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला खुशाब के मुतअद्दिद इलाके भी गुज़िश्ता कई रोज़ से शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इलाका थल समेत दीगर इलाकों में कई रोज़ से शदीद धुंध का राज है, जिसकी वजह से जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है वहाँ ट्रैफिक के निज़ाम में भी खलल पड़ा है, क्योंकि सख्त धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया जा रहा है। पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब की तरफ से ड्राइवर्स हजरात पर जोर दिया गया है कि फोग लाइट्स का भरपूर इस्तेमाल करें। ड्राइविंग के वक्त गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुज्तबा ने मोटरसाइकिल सवारों को हिदायत की है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और मोहताज ड्राइविंग करें। दूसरी तरफ इलाका थाल समेत दीगर निवाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी की वजह से लोगों ने खाने पीने में गर्म अशिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खसूसन मछली और अंडों की मांग में इन दिनों इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। इसी तरह सख्त सर्दी के असरात से महफूज रहने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। अगली खबर शामिल करते हैं चौक सरवर शहीद से, जहां डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अब्बास बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अवैस मांगट ने THQ हस्पताल चौक सरवर शहीद में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम इफ्तिताह किया। चौक सरवर शहीद में डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की हिदायत पर पोलियो मुहिम जारी है, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर अवैस मांगट MS डॉक्टर नुसरत रहमान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फरख अमान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। इस 5 रोज़ा मुहिम में तहसील चौक सरवर शहीद में 7 UCOs में 10 UCM और 63 एरिया इंचार्ज के साथ 333 पोलियो टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो कि 4 लाख से ज़ायद आबादी के लिए 5 रोज़ में तहसील चौक सरवर शहीद में 85,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और ये पोलियो मुहिम 12 जनवरी तक जारी रहेगी। इस मौके पर डिप्टी DHO डॉक्टर फरख अमान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि और गिरदोनवा में शदीद धुंध की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से इस वक्त सरगोदा का दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हद निगाह कम होकर रह गई है। मज़ीद जानते हैं सरगोदा से गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सरगोदा और इसके गिरदोनवा में जो है शदीद धुंध का राज है और इस शदीद धुंध की वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से जो है सरगोदा में इस वक्त जो है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो सरगोदा शहर के अंदर जो है वो हद निगाह की अगर बात की जाए तो इस वक्त हद निगाह जो है वो 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। तो इस हवाले से जो है सफ़र करने वाले शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से हम जो है वो शहरियों से भी बात करेंगे कि उनको जो है वो सफ़र करने के लिए किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस धुंध की वजह से जो है वो हद निगाह बिल्कुल जो है वो कम होकर रह गई है। तो चलते हैं शहरियों के पास और उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी देखिए, धुंध है और काफ़ी दिनों से है। इसने सरगोदा को और इसके पूरे ज़िला सरगोदा को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है। सुबह के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात आती हैं। शाम में जब ऑफिस से घर आते हैं तो उस वक्त भी धुंध होती है और इतनी धुंध होती है कि आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से कई हादसात भी रूनुमा हुए हैं। और जितनी इस वक्त शदीद सर्दी है जिसकी वजह से ये धुंध है, बच्चे जो उनसे वो शदीद डिस्टर्ब हैं। बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इसकी बीमारियां बच्चों में आम हो चुकी हैं। और मैं आपके विसासत से ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहब, जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड था तो आपने स्कूलों को छुट्टियां कर दी और अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने स्कूल खोल दिए हैं। खुदारा छोटे बच्चों की हालत ज़ार पर रहम करें। मैं ये बड़ा हूँ और ये देखें मैंने कितना अपने आप को पैक किया हुआ, उसके बावजूद ठंड लग रही है और शदीद सर्दी का एहसास हो रहा है। स्कूलों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहां पर हीटिंग सिस्टम हो।
वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह गैस तो आती नहीं है, सर्दी शुरू हुई है, धुंध की वजह से, ठंड की वजह से गैस जो है वो तो आ ही नहीं रही। ठीक है, घंटे के लिए आती है और वो भी आती है, ऐसी आती है कि पता नहीं लगता। तो इस वक्त जो शदीद ठंड और सर्दी है, इसके अंदर मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि खुदारा घरों से कम निकलें, जरूरी काम के लिए निकलें, क्योंकि इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि धुंध है और धुंध के अंदर जो सफर है वो बिल्कुल ना करें। ठीक है, और मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि जो सिर्फ स्कूल्स हैं बच्चों को, उनको उनके अंदर छुट्टियां थोड़ी सी बढ़ा दें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे जो है वो ठंड और सर्दी से महफूज हो जाए। सरगोदा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पे हम आते हैं और बहुत ज़्यादा स्मोक है, ज़्यादा सर्दी है, हद रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा भी 1-1.5 कनाल के आगे से कुछ नज़र नहीं आता और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से स्मोक हो रही है और बहुत ज़्यादा बीमारियों के बायस बन रहे हैं, बच्चे भी बीमार हैं। और हम बाइक पे सफ़र करते हैं, लेकिन बाइक के ऊपर ना हम सफ़र नहीं आसानी से तय कर सकते। बहुत शुक्रिया अली अकबर आपका, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान डिवीजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना चहलिक ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब अकमल अकबरी गैंग के सरगुना समेत 103 अरकान को गिरफ्तार करके 21 लाख रुपए से जायद मालियत के 18 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। एसपीए कैंट डिवीजन राना अरसलान जाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला। आज एक बहुत अहम हमने मोटरसाइकिल चोरी का गैंग पकड़ा था, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना जो है वो हम ज़रूरी समझते थे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारे पास चलिए थाने की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी जो है वो एक यहाँ का एक क्रॉनिक इशू है। ख़ास तौर पे ये सेशन हमारे पास कचहरी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सेशन गेट के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हमारे पास होती रहती हैं। तो उसके ऊपर मुसलसल वर्किंग जो है वो जारी थी और उसी दौरान एक वारदात हमारे पास मोटरसाइकिल चोरी की होती है। उसको वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए ट्रेस करने की कोशिश की गई, तो उन सीसीटीवी कैमरास से ही बंदों को आइडेंटिफाई किया गया अपनी लोकल सोर्स पर चलते हुए। FIR नंबर 2561/23 यहाँ पे चलिए थाने में दर्ज था। उससे हमने 3 बंदों को, अकमल, फलक शेर और शान नाम के 3 बंदों को गिरफ़्तार किया। उनको गिरफ़्तार करने के बाद जब उनको इंटेरोगेट किया गया तो उनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह से था कि वो मोटरसाइकिल का लॉक जो है वो खोल के और उसके बाद बाइक जो है वो चोरी करते थे। इस तरह से कुल जब उनको मज़ीद इंटेरोगेट किया गया तो कुल 18 वारदातें जो हैं उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की मानी और 18 मोटरसाइकिल्स अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनसे फिर रिकवर की, जिनमें 15 मोटरसाइकिल जो हैं वो इसी जो गुज़िश्ता साल 2023 की चलिए थाने की थी। इसी तरह से एक बाइक जो है वो 2021 की चलिए थाने की थी। एक बाइक हमने 2022 की मुमताज़ाबाद थाने की रिकवर की और एक बाइक 2019 की गुलगश्त थाने की रिकवर हुई। तो कुल 18 बाइक्स जो हैं वो इनसे रिकवर हुई हैं। ये 3 रुकनी गैंग था जो ऑपरेट करता था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ये तीनों लोग जो हैं वो इससे पहले पकड़े नहीं गए थे, किसी वारदात में कोई इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो एक बड़ी कामयाबी है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इसको ट्रेस किया है। तो इसके बारे में आपको जो है, क्योंकि मोटरसाइकिल चोरी हमारे पास एक क्रॉनिक इशू चल रहा था और इस तरह के जेन्युइन क्रिमिनल्स जब पकड़े जाते हैं जिनसे इस किस्म की रिकवरी होती है तो काफ़ी हेल्प मिलती है कि ये वो लोग हैं जो कि पिछले 19 की जिस तरह से इन्होंने वारदात मानी है तो पिछले 5 साल से ये कुछ ना कुछ हद तक एक्टिव चल रहे थे। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। खबर शामिल करते हैं। मंचनाबाद में इंतखाबात के सिलसिले में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप और सैयद मोहम्मद रफीक शाह ग्रुप दोनों इत्तेहादी ग्रुपों की मंचनाबाद प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों सियासी ग्रुप नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान और मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप के वर्कर्स की तरफ से उम्मीदवारान का वालेहाना इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर किए गए। उम्मीदवार इनका इलाका की तरक्की और अवाम की खिदमत का भरपूर अज़्म। लीग नून ने जिला सरगोदा की 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कंफर्म कर दिए। चेयरमैन मरकजी इलेक्शन सेल मुस्लिम लीग नून सेनेटर इसहाक डार की तरफ से जारी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82 सरगोदा से डॉक्टर मुख्तार अहमद भर्त, NA 83 सरगोदा 2 से मोहसिन शाह नवाज रांझा, NA 84 सरगोदा 3 से डॉक्टर लियाकत अली खान, NA सरगोदा 4 से डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी, NA 86, 85
88 सरगोदा 5 से जावेद हसनैन शाह और इसी तरह सूबाई असम्बली के लिए PP 71 सरगोदा से सुहेब अहमद भर्त, PP 72 सरगोदा 2 से मंसूर आजम, PP 73 सरगोदा 3 से मियां मनाजिर अली रांझा और PP 74 का अभी फैसला नहीं हो सका। PP 75 सरगोदा 5 से अब्दुल रज़ाक ढलो, PP 76 सरगोदा 6 से महर दस्तगीर खान लुक, PP 77 के उम्मीदवार का फैसला अभी नहीं किया गया। इसके अलावा PP 78 सरगोदा 8 से राना मुनव्वर गौस, PP 79 सरगोदा 9 से तैमूर खान बलोच, PP 80 सरगोदा 10 से सरदार आसिम शेर मस्कीन को मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जारी कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून पाकपतन के हलका PP 193 के लिए टिकट फाइनल ना कर सकी। PP 193 से नून लीग की टिकट के लिए मानिका खानदान आमने सामने। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के दामाद और साबिका शोहर के भाई नून लीग की टिकट के लिए कोशा। साबिक लीगी MNA और खावर मानिका के भाई फारूक मानिका लीगी टिकट के ख्वाहिशमंद। साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी के दामाद और साबिका सूबाई वजीर अता मानिका के बेटे भी लीगी टिकट के उम्मीदवार। सफदराबाद पासपोर्ट ऑफिस करप्शन का गढ़ बन गया। रिश्वत के बगैर पासपोर्ट शजरे हसूल ममनुआ करार दे दिया गया। पासपोर्ट ऑफिस सफदराबाद करप्शन का गढ़ बन गया। इंचार्ज सफीर शाह ने एजेंट माफिया को पासपोर्ट ऑफिस के अंदर और बाहर खुली छुट्टी दे दी। पासपोर्ट ऑफिस का अमला टाउट और पासपोर्ट ऑफिस इंचार्ज सफीर शाह के खास आदमी एजेंट माफिया को पासपोर्ट ऑफिस के अंदर और बाहर अपनी निगरानी में करप्शन करवाने लगा। एजेंट माफिया ने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर और बाहर करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। सादा लो अवाम को लूटने लगे। साहिलीन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आला हुकाम से गुजारिश की है कि इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस सफीर शाह को मुअत्तल करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 13 जनवरी को होने जा रहे हैं। वकला हजरात पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। वकला ने वीनस से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो इमरान खान खाकवानी के साथ हैं। मजीद इनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। वकला पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से हम मजीद वकला से बात करते हैं कि उनका इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मंजूर हुसैन आहिर एडवोकेट। आज का ये जो फंक्शन है ये इमरान खान खाकवानी साहब के एजाज़ में रखा गया है। तो ये जो जमे गफ़ीर है इस चीज़ की गमाजी करता है कि 13 जनवरी का सूरज इंशाअल्लाह इमरान खान खाकवानी की जीत का दिन होगा। और ये आप गहमे गहमी देख रहे हैं, वकला पुरजोश हैं और इमरान खान खाकवानी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी से हमकिनार कराए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे। सर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी जीत ना आज के दिन में ही साबित हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें उसका रिवॉर्ड देगा इंशाअल्लाह ताला। सर देखें, हमारे रिस्पेक्टेबल हैं पड़े, जो भी सारे सीनियर्स हैं पड़े, उनकी रहनुमाई की वजह से हम ये इस दफ़ा इतनी अच्छी क़यादत हासिल हुई है हमें। और इसी के साथ साथ इंशाअल्लाह 13 जनवरी विल बी आवर डे एंड वी विल इंशाअल्लाह विन। थैंक यू। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।